Hello everyone, welcome back to Wings IAS JKAS. Hope you all are doing great. In the today's session, we will be discussing about the strategy of CSAT for JKAS 2022. But before we start, I would like to give a brief introduction first. Myself Rafiq Yusuf, about educational background, have completed BTech from NIT Srinagar. Besides engineering, I have a great interest in teaching. From the last 3 years, I have been associated with CSAT section. In 2019, I taught the course of CSAT at ICP Rajbagh, Srinagar. In 2020, I completed the whole course of CSAT at HADAF, a government initiative for civil services coaching at District Shopian. And in 2021, I worked as a faculty for CSAT in Career Classes 365. Based on my experience, I would like to share some important points or a strategy for this paper. Our today's discussion will be primarily for JKAS, that is strategy for JKAS CSAT 2022. We will see what this course is all about, what are the important components, and how we can complete it in a given timeline. As we all know that the preliminary examination for JKS 2020 is going to be held or tentatively scheduled on 26 June 2022. That is almost we have 37 days now left for this exam. Are they sufficient to cover this course, to cover the syllabus of this portion and get through the defined criteria? I would say that it is sufficient time to get through the qualifying criteria of this course. Now, we will first decode the preliminary examination of JKAS a bit. JKAS preliminary phase. We will decode a little bit. This first paper consists of two sections, that is paper first and paper second. And are held on the same day. Paper first is purely general studies and it has some subjects like history, economy, geography, polity, EVS, general science, current affairs, and some miscellaneous topics also from this section. If we talk of paper second, it is generally called CSAT, which in turn has some sections like quantitative section, reasoning section, and comprehension. Comprehension includes interpersonal skills also. Interpersonal skills, I will write IPS shortly, or communication skills. Now, the total weightage of this preliminary paper is 400 marks, of which we have 200 marks in paper 1
that is GS, and 100 questions total, that is 2 marks per question, and time here we have 2 hours. Similarly, in paper second we have total 200 marks. This paper is also of 200 marks with 80 questions or 100 questions. Last year in 2021 they asked 100 questions from this section. Before that we had 80 questions, but the weightage is same, and time again here is 2 hours. Now we will see that what is the difference between these papers, how merit is decided. There is one important condition in paper second, that is CSAT. It is here we have a set condition for this paper, that is it is only qualifying. If we are able to qualify the minimum marks, we will be declared qualified, and these marks don't count in the merit actually, and qualifying marks are set at 33% of the total marks. अगर हम देखें टोटल है 200 मार्क्स, उनका 33% जो है इट इज नियरली इक्वल टू 66 to 67 मार्क्स, और वी कैन से नियरली 33 to 34 क्वेश्चंस. अगर नेट हमें 66 to 67 मार्क्स आते हैं, हम इस पेपर को क्वालिफाई कर चुके हैं. और उसके बाद इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद ही GS1 यानी पेपर 1 इवेलुएट होगा, और पेपर 1 का स्कोर जो है दैट इज एक्चुअली मेरिट डिसाइडर. मेरिट जो डिसाइड होता है वो पेपर 1 पे है, बट वंस वी क्वालिफाई पेपर 2 देन ओनली और पेपर फर्स्ट विल बी इवेलुएटेड. और यहाँ पे ऑब्वियसली जितनी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगी उतना मेरिट कम होगा, एंड वाइस वर्सा. तो सजेशन यही होगी कि पेपर 1 में जितना हम कर सकते हैं उतना बेटर होगा, टू बी ऑन द सेफर साइड. एंड इन पेपर 2 वी शुड क्वालिफाई सेफली द क्राइटेरिया दैट इज 33% मार्क्स. और ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इट इज़ बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स. भीड़ को कम करने के लिए, मेन स्टेज के लिए लड़कों का तादाद कम करने के लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है. एंड इन फाइनल सिलेक्शन दीज मार्क्स डोंट गेट काउंटेड, बट it is important to get into the second stage. Here our discussion will be primarily for aptitude section. We will not talk about paper 1, that is GS paper. Now what is the problem in aptitude section? It is that some students who are not from the mathematical background found this section as difficult, and besides having a good score in paper 1 they are not able to qualify in the preliminary examination. इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक अप्रोच जो है यहाँ पे शेयर करेंगे, एक 1 month स्ट्रैटेजी हम शेयर करेंगे जिससे कि हम इस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को जो है पार कर सकते हैं. अगर एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करेंगे इसमें 3 पार्ट्स है. We have quantitative aptitude, quantitative section, reasoning section, and third is comprehension plus communication skills or interpersonal skills. ये टोटल पेपर जो है इट इज़ ऑफ 200 मार्क्स. और इसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो 40 to 50 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग पार्ट, एंड 50 to 60 क्वेश्चंस जो है वो कॉम्प्रहेंशन एंड इंटरपर्सनल स्किल से पूछे जाते हैं. लास्ट ईयर इन 2021 वी गॉट 40 क्वेश्चंस फ्रॉम quantitative and reasoning part. Sometimes this number can increase. So
एवरेज में हम एक रेंज ले सकते हैं 40 to 50 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट एंड 50 to 60 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट. अगर 40 क्वांट रीजनिंग से आएंगे तो 60 आएंगे कॉम्प्रहेंशन से. नाउ I will briefly tell about comprehension and interpersonal skills also. Comprehension part is about checking the reading skills or communication skills we can say. रीडिंग स्पीड क्या है, क्योंकि एक लंबी लंबी पैसेजेस दी रहती है, उसके बाद दे आर फॉलोड बाय द क्वेश्चंस. उन पैसेजेस को पढ़ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इसमें वोकैब का भी रोल आता है, रीडिंग स्किल्स का रोल आता है, और जिसके जितने फास्ट होंगे वो उतना जल्दी पेपर कर सकता है. और इसके लिए जो है इम्प्रूवमेंट या इसके लिए जो मेथड होगा दैट विल बी न्यूज़पेपर रीडिंग. अगर हम करें, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रोज़ पढ़ें और कीवर्ड्स को जो है हाईलाइट करें, कीवर्ड्स को हाईलाइट करके हम इस पोर्शन में स्कोर अच्छा कर सकते हैं, उससे इम्प्रूव हो सकता है. अब रही बात इंटरपर्सनल स्किल्स की, इसमें थोड़ी से बेसिक्स हमें पढ़ने की ज़रूरत है. कुछ टर्मिनोलॉजी रहती है, इसमें टर्म्स का यूज़ रहता है जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उन बेसिक्स को थोड़ा सा पढ़ के उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और फॉलोड बाय सम MCQs अगर हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट से, तो कॉम्प्रहेंशन प्लस इंटरपर्सनल स्किल्स से हम कुछ मार्क्स जो है फेच कर सकते हैं. यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन है वो बेसिकली है फॉर क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग सेक्शन. इस 40 to 50 क्वेश्चन में अगर हम पेपर का एनालिसिस करें, वहाँ से 30 to 40 क्वेश्चंस जो है वो ईजियर होते हैं, ईजियर पूछे जाते हैं, दैट इज़ दे आर डूएबल. और अगर हमें अच्छी कमांड हो कुछ एरियाज़ पे, CSAT में हम आराम से 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम क्वांट एंड रीजनिंग पार्ट. और हमें कहाँ तक जाना चाहिए कॉम्प्रहेंशन में वो भी हम देखेंगे. अगर हम पूछें कि कैसे पेपर जो है पेपर सेकंड सॉल्व करना चाहिए, हमें पहले क्वांट रीजनिंग से स्टार्ट करके लगभग 1 और 20 मिनट्स इसमें लगाने चाहिए. दैट इज़ टोटल 80 मिनट्स हमें पेपर पार्ट 1 दैट इज़ क्वांट एंड रीजनिंग सॉल्व करना चाहिए. और यहाँ से रिमेनिंग 40 मिनट्स जो है वो हमें पैसेज या इंटरपर्सनल स्किल्स में देने चाहिए. और यहाँ पे अगर हम 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स की तरह टाइम कॉन्स्टेंट्स नहीं है. 2 मिनट्स हम आराम से ले सकते हैं और आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें 1 मिनट की भी ज़रूरत नहीं होती है. और यहाँ से 30 to 40 क्वेश्चन अगर हम कर पाएँ अच्छे से, करने को तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ. और यहाँ से 40 मिनट्स में अगर हम 20 to 25 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं आराम से, और टोटल मिला के अगर हम देखें ये हमारा स्कोर होता है 50 to 60 क्वेश्चंस. ये रेंज की बात मैं कर रहा हूँ. और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है 33 to 34 क्वेश्चंस. दैट इज़ हम सेफ जोन या सेफ स्कोर मान सकते हैं, सेफ जोन मान सकते हैं, इससे सेफ अटेम्प्ट मान सकते हैं इसमें. लेकिन ये जो टाइम हमने दिया है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, इससे हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि हमने पढ़े हुए हैं, और किसी ऐसे क्वेश्चन को जो कि हमें लगता है कि ये हार्ड है, इस पे जो है ये नहीं निकल सकता, उसको स्किप करके आगे जाएंगे, क्योंकि हमें इजी क्वेश्चन मिलते जाएंगे. हार्ड को स्किप करके आगे जाएंगे जब तक कि हम 30 to 40 क्वेश्चन पार्ट 1 से सॉल्व करेंगे. और 50 to 60 क्वेश्चन ऐसा करके 2 आवर्स में हम बड़े आराम से कर सकते हैं, जो कि हमारा सेफ जोन माना जाएगा. और अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्रोच किया जाए क्वांट सेक्शन एंड रीजनिंग सेक्शन, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा हार्ड लगता है, दोज हु डोंट हैव मैथमेटिकल बैकग्राउंड और जिनका जो एनालिटिकल एबिलिटी वीक रहता है. इसमें मैं डिस्कस करूँगा
सम एरियाज जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए. फोकस ऑन स्कोरिंग एरियाज. कुछ एरियाज है सी सैट में जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स फ्रॉम दिस सेक्शन. और वो क्या है, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा यहाँ पे. उन चैप्टर्स को हमें ज़रूर करना ही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट क्वालिफाइंग मार्क्स. फर्स्ट इज नंबर सिस्टम्स. पहला चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात हम पहले करेंगे. सेकंड इज क्लॉक्स. थर्ड इज कैलेंडर्स. देन averages. Then we have percentages, profit loss या डिस्काउंट. ये सारे एक ही चैप्टर में आते हैं. वो मिला जुला कंसेप्ट लगता है सब में. पार्टनरशिप. नेक्स्ट वन इज permutations and combinations. Permutations and combinations. Then we have speed, distance, time and boats and streams. ये भी एक ही चैप्टर में आएगा सारा. Then we have ratio and proportion. और उसी चैप्टर में हमारा एलिगेशन एंड मिक्सचर भी सॉल्व हो जाएगा. देन वी हैव डाटा इंटरप्रिटेशन. We have some miscellaneous topics, but first we will complete these important topics, important chapters जिनसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट जोन रहते हैं. और अगर उसके बाद भी थोड़े से कुछ miscellaneous टॉपिक्स रहते हैं वो भी हम करने की कोशिश करेंगे, बट दीज आर मस्ट. रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ से जो है वहाँ से हमें ज़रूर पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग. Then we have blood relations. The next is dice, Venn diagrams पे भी क्वेश्चन दिए रहते हैं. स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स जिसको हम साइलॉगिज्म कहते हैं. साइलॉगिज्म भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग सेक्शन का. एंड देन कम्स डायरेक्शंस. ये वो सेक्शन है जो कि स्कोरिंग है जिन पे हमें कमांड होनी चाहिए. देन इज ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग. मैक्सिमम सवाल हमें इन्हीं चैप्टर्स में मिलेंगे. एंड देन सीरीज, बोथ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड नंबर सीरीज. नाउ अप्रोच क्या होना चाहिए. इन चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे इन द क्लास 1 मंथ में. पूरे सब चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे एक अच्छे मेथड्स को यूज़ करके. दोज मेथड्स विच विल इन्वॉल्व लीस्ट मैथमेटिकल इन्फ्लुएंस, और जिनमें ट्रिक्स होंगी और जिनमें एक स्पेशल अप्रोच होगा जो कि हर कोई स्टूडेंट जो है अंडरस्टैंड कर सकता है और इनसे आसानी से जो है मार्क्स हासिल कर सकता है. नाउ अप्रोच क्या होना चाहिए वाइल वी डील विद दिस सब्जेक्ट. अप्रोच हमें कौन सी चीज़ें जो हैं दिमाग में रखनी चाहिए जब भी हम इसकी तैयारी करेंगे. आई वुड शेयर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इफ़ वी फॉलो दोज वी कैन डेफिनेटली मास्टर ओवर दीज chapters. We can easily get through the qualifying criteria of this subject. First जो चीज़ है हम क्लियर बेसिक्स. फर्स्ट चीज़ जो है हमें जो है बेसिक्स क्लियर करने हैं, फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं हर किसी चैप्टर के.
यानी हर किसी चैप्टर में कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके क्या बेसिक्स है, क्या टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसको पहले क्लियर करेंगे, उसको पहले समझेंगे, डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे क्वेश्चन पे। उनको समझने के बाद हमें जो है अंडरस्टैंड करनी है इक्वेशंस, अंडरस्टैंड इक्वेशंस, या इक्वेशंस में जो पैरामीटर्स है उनको समझना है, या कहीं कहीं पे प्रोसीजर जो फॉलो होगा क्वेश्चन के लिए वो समझना है, या मेथड या रूल या सिंबल्स का कहीं पे यूज़ होगा, या ग्राफ्स का कहीं पे यूज़ होगा। उन सब चीज़ों को पहले ढंग से जो है समझेंगे। आफ्टर दिस वी नीड टू रिमेंबर दीज, इनको फिर याद रखेंगे हम। रिमेंबर दीज इक्वेशंस, इन चीज़ों को फिर हम याद रखेंगे, या रूल्स हो, प्रोसीजर्स हो। जब हमने समझा, उसके बाद पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड किया, बेसिक्स को क्लियर किया, इक्वेशंस को याद रखा, देन वी विल जंप टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, दैट इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे टू अंडरस्टैंड एप्लीकेबिलिटी। जो भी हमने इक्वेशंस पढ़ी है उनका एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है, यूज़ कैसे करना है, उसको समझने के लिए हम साथ साथ जो है क्वेश्चन करते जाएंगे हर किसी चैप्टर में। देन सॉल्व, ये करने के बाद हम करेंगे सॉल्व PYQs, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, चाहे JKAS और UPSC, वो हमें लगाने ही चाहिए। इसके बाद अपीयर इन मॉक टेस्ट्स लगाएंगे, या जो भी टेस्ट सीरीज़ हमने ज्वाइन की होगी उसमें से पेपर सेकंड जो है वो भी अटेंड करेंगे, उसमें भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर सेकंड में। यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, अपीयर इन मॉक टेस्ट्स में हम यूज़ करेंगे रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस टेक्निक। जो भी चैप्टर हमने पढ़े होंगे, जो भी मटेरियल हमने पढ़ा होगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े होंगे, मॉक टेस्ट्स में अपीयर होने के बाद हम क्वेश्चन से रिवाइज करेंगे चैप्टर्स को, यानी रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस। जिस चैप्टर से हमें आसानी से क्वेश्चन लगेंगे, उसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर है, और जहाँ जहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी फील होगी, इसका मतलब है कि हमें फिर से उस चैप्टर को देखना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को फिर से एक बार रिवाइज करना चाहिए, और जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज इवेलुएट योर परफॉर्मेंस। जब भी हम मॉक टेस्ट देंगे तो साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस देखा करेंगे, एक्यूरेसी देखा करेंगे, क्या हमें कैलकुलेशन आती है, स्पीड कितनी फास्टनेस है हमारे अटेम्प्ट में, और क्या स्कोर मिलता है हमें, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो इजीली हम पार कर पाते हैं कि नहीं, ये भी हम साथ साथ करेंगे मॉक टेस्ट देने के बाद या PYQ सॉल्व करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट इज अवॉइड यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स। जो भी कन्वेंशनल मेथड्स है उनको अवॉइड ही करेंगे, रादर वी शुड यूज स्पेशल मेथड्स। CSAT में बहुत सारे स्पेशल मेथड्स है जिनसे हम क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो सेक्शन है CSAT, इट बिकम्स इंटरेस्टिंग बाय दोज मेथड्स जिनमें लीस्ट मैथमेटिकल इन्फ्लुएंस होता है, थोड़ा ट्रिकी होते हैं। उन
मेथड्स को हम समझेंगे, नॉर्मल मेथड्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स जैसे हम सॉल्व करते हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज़ time consuming and at the same time it has very less accuracy. Then next thing is practice till we get, practice till you feel confident. तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन लगाते रहेंगे जब तक हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस पार्ट से, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अगर सीसैट के क्वेश्चंस को देख के हमें डर नहीं लगता है, श्योरली एंड डेफिनेटली वी कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। लेकिन अगर हमें डर लगता है क्वेश्चन को देख के ही, तो फिर वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। तो ये जो डर है, ये कॉन्फिडेंस जो है वो प्रैक्टिस से आएगा। जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उतना जो है हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस सेक्शन पे। प्रैक्टिस करते जाएंगे एंड देन रिवाइज handwritten notes in last 7 days 37 days थे टोटल। 30 डेज स्ट्रेटजी हमने बताई। 30 डेज में ये चैप्टर जो है कंप्लीट करने हैं अलॉन्ग विद प्रॉब्लम्स, मॉक टेस्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये करने के बाद हम साथ साथ जब भी ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हैंड रिटन नोट्स भी बनाएंगे, और लास्ट का जो एक वीक रहेगा, 7 डेज रहेंगे, उसमें सिर्फ जो है हम हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करेंगे, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स बहुत ही जो है हेल्पफुल होते हैं लास्ट टाइम मूवमेंट में। इन्हीं से पूरा सिलेबस हम रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज़ द स्ट्रैटजी विच आई पर्सनली बिलीव वर्क्स इन दिस सेक्शन।